اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ جل شانہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ ہے کہ یہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر اللہ متوجہ ہو کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ زندگی نصیب فرماتے ہیں جس زندگی کے اندر دنیا اور آخرت میں وہ سعادتیں اللہ نے جو نیک لوگوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں وہ سعادتیں اس بندے کو نصیب فرماتے ہیں۔ انسان دنیا کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی لالچ میں پھنسا ہوتا ہے، روپے پیسے کی دوڑ ہوتی ہے، دنیا کے اسباب کی دوڑ ہوتی ہے، اور وہ پوشیدہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خزانہ غیب کے اندر اس بندے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، یہ انسان اس سے غافل ہوتا ہے۔ اور اللہ کھول کھول کے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے بندو، دنیا کی تمہاری جو آنکھ کھلی ہے حقیقت میں یہ تمہاری آنکھ بند ہے، اور ان احوال کو نہیں دیکھ رہی جو احوال میں تمہیں بتا رہا ہوں، نبی کی زبان سے، فرشتوں کی زبان سے، اور پھر وہ نیک لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے، اور وہ کھول کھول کے جو بیان کرتے ہیں، تمہاری نگاہ، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ اس طرف نہیں جا رہی۔ اور یہ بار بار اللہ کی بات کو کرنا، بار بار وہ حکمت کی باتیں جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو کر کے دلوں کے رخوں کو پھیر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قانون قاعدہ ہے کہ جو انسان ان باتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، کہ جو باتیں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو پھر یہ انسان اپنی زندگی کو بدل ڈالتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان دنیا کی دھوکے میں پھنسا عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، اے لوگوں یاد رکھو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، شیطان دھوکہ دے رہا ہے، یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے، اور انسان اپنی غفلت سے اسے سمجھ نہیں پاتا، اور سب سے اہم سبق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی روشنی کو تیز کر دینا۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، فرمایا کہ انہوں نے ایسے دعو کیے کہ پیغمبر کو ہاتھ دینے کے لیے، اور اس وقت کے جو انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے، فرمایا ان کو ہرا دینے کے لیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے بھی ایک دعو کیا، لیکن جب اللہ نے ایک دعو کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کا دعو سب سے بڑا ہوا تھا، اللہ کا دعو سب سے بڑا ہوا تھا۔ وہ جو لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے جو داؤ لگائے، اور میں اگر وہ داؤ اتنے تیز تھے کہ پہاڑ بھی ان کے داؤ سے لرز جاتے، یعنی وہ داؤ اتنے تیز تھے، یعنی ان کی سکیمیں اتنی تیز تھیں، ان کے جو اسباب تھے دنیا کے ظاہری اسباب اس قدر تیز تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے وہ ہٹ جاتا ان کے داؤ کی وجہ سے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف محنت کرتے رہے، اور یہ بدمعاش قسم کے لوگ، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری پیدا کرنے والے لوگ، دوسروں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے والے لوگ اپنی محنت کے اندر ہمیشہ رہتے رہے، اور جب ہمیشہ اسی محنت میں رہے، پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ ہر دور میں یہ ہوا، پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا نبی کے درمیان، نبی کے ماننے والوں کے درمیان، اور وہ جو نبی کو تنگ کر رہے تھے، نبی کے پیروکاروں کو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اور پھر ان کا مقصود صرف دنیا ہی تھا، تو ان کے مقابلے میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت چلی، انہوں نے اپنا وہ حکمتیں، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جگہ جگہ پہ سمجھا کے باتیں کہ تم اس طرح زندگی گزارو، وہ چیزیں جب سامنے آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خشیت اختیار کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دل لگانے والے تھے۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لوگو، الہاکم التکاثر، یہ دنیا کی خواہشات تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں، الہاکم التکاثر، تم اسی خواہشات کے اندر چلتے ہو، تم اس چیز کو نہیں یاد کرتے کہ قبر کے اندر تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی، جب تمہارے قبر کے اندر تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جب قبر کے اندر تمہارے گوشت تمہاری ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا، تمہارے سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے، تمہارے منہ اور تمہارے جسم کے وہ ٹکڑے جن کے اوپر تو خوشبو لگایا کرتا تھا، وہ سارے کے سارے گلے سڑے ہوں گے، اور تیرے جسم کے اوپر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، تو اس وقت کو نہیں سمجھ رہا، الہاکم التکاثر،
تو ख्वाहिशात में फंसा हुआ है, तो ख्वाहिशात में फंसा हुआ है। रुपये पैसे की दौड़, माल असबाब की दौड़, चीज़ों की दौड़, गाड़ियों की दौड़, महलों की दौड़, तो इसी गफलत में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि जब तू गाफिल ही रहता है और गफलत करते करते अचानक एक मौत का झटका लगता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तू कब्र की ज़ियारत कर लेता है। जब तू कब्र में चला गया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हाँ जानना तो ये था कि तू दुनिया में जान जाता, जानना तो ये था कि तू दुनिया में जान जाता, लेकिन कल्ला सौफ तअलमून, अल्लाह फरमाते हरगिज़ नहीं, वो अब नहीं जान रहा ना, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें मोहलत दे रखी है, कुछ वक़्त के लिए मोहलत है, कोई बात नहीं, नहीं जानता, लेकिन अनकरीब तू जान जाएगा। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं, तू अनकरीब जान जाएगा अगर तूने अपनी ज़िंदगी को यहाँ ना बदला। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, तू अनकरीब जान जाएगा कि वो अल्लाह का पैगाम क्या था, वो नबी का पैगाम क्या था, और वो कौन सी ज़िंदगी तुम्हें समझाना चाहते थे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर तू क्या करेगा, कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, तू यकीन के इल्म से उसे जान लेगा। एक होता है किसी चीज़ को आँख से देखना, एक होता है किसी चीज़ का बता देना। जब इंसान किसी चीज़ को बताता है तो यकीन कमज़ोर होने की वजह से, ईमान कमज़ोर होने की वजह से वो उस बात पे यकीन कामिल नहीं रखता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो पैगंबरों की ज़बान से तुम्हें बताया जा रहा है ना, ये बड़ी ऐसी बातें हैं कि जिन बातों पे चल के तुम बड़े बड़े इनामात को हासिल कर सकते हो। कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, तुम ज़रूर इल्म यकीन की निगाह से देख लोगे। लतरवुन्नल जहीम, तो फरमाया तुम ज़रूर जहन्नम को देखोगे। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर ज़रूर बर ज़रूर तुम यकीन की आंख से उसे देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर मैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे सवाल होगा, फिर तुमसे सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे सवाल क्या होगा, तुम्हारी नेमतों के बारे में। हमने तुम्हें सेहत दी थी, तुमने इसका क्या हक अदा किया, क्या तूने मेरा शुक्र अदा किया, क्या तूने जिस्म को मेरी याद के लिए थकाया है, क्या तूने इस जिस्म के साथ मेरे दीन के लिए मेहनत की है। ये दिमाग था, तू साजिशें ही सोचता रहता था दुनिया के लिए, कि क्या अल्लाह के लिए भी सोचा है। क्या तू नमाजों में लगा था, क्या तू जिक्र उसकार में लगा था। वहां तो सुहाबा अपनी जानों के नजराने पेश करके चले गए, अंबिया तो अपने जानों के नजराने पेश करके चले गए। मेरे बंदे तू बता तूने क्या किया है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर इससे सवाल किया जाएगा, फिर इसे ठंडे पानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि जिस वक्त तुझे सख्त प्यास लगती थी, कौन था तुझे ठंडा पानी पिलाने वाला, कौन था तुझे ठंडा पानी पिलाने वाला। जब तू तन्हा अकेला था, कौन था तुझे अपने माँ बाप का सहारा देने वाला। जब तेरा कोई मोनस नहीं था, कौन था बच्चों के दिलों के अंदर तेरी मोहब्बत पैदा करने वाला। जब तू क्या था, बिल्कुल मुफलिस था, कौन था तुझे माल देने वाला। ये सब कुछ बंदे मेरा है, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरी एक जान है। इस जान को तूने बचाना है, इस जान को तूने बचाना है उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन मर्द, औरत और पत्थर है। तो सबक दे दिया, सबक दे दिया कि अनकरीब मौत आने वाली है, और समझदार है वो इंसान, अक्लमंद है वो इंसान जो मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करे। और न समझ है, बेवकूफ़ है वो आदमी जो मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी न करे। तो मैं इसकी मिसाल तो यूँ है कि इंसान क्या करे, सफ़र में है, लेकिन जब सफ़र में जाने लगे तो तैयारी उसने करनी थी किसकी, सफ़र की, लेकिन उसने क्या किया, शीशा कंघी के अंदर लगा हुआ है, अपने बालों को संवारने पे लगा हुआ, अपने कपड़ों को संवारने पे लगा हुआ। और अनकरीब क्या हुआ, अचानक गाड़ी की सीटी बजी और इशारा ये था कि गाड़ी चलने वाली है। हालांकि यहाँ पे तो ये था कि ये इस गाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयारी करता, इस गाड़ी पे सवार होने के लिए तैयारी करता, अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए तैयारी करता, लेकिन इसने टिक टॉप के चक्कर में अपने कपड़ों की तो खूबसूरती बनाई, अपने बालों की खूबसूरती तो बनाई, अपने जिस्म की खूबसूरती तो बनाई, अपने चेहरे की खूबसूरती तो बनाई, लेकिन आने वाले सफ़र से गाफिल हो गया। अब गाड़ी चली गई, ये अकेला पीछे रह गया। इसी तरह मौत वो एक गाड़ी है जो इंसान को या जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली है या जन्नत की तरफ लेके जाने वाली है। इस सफ़र के लिए तैयारी है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की ज़ेब ज़ीनत में लग के इतने अजीम सफ़र को ये भूल जाए, इतने अजीम सफ़र को ये भूल जाए। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, अलबत्ता तुमने ज़रूर सीढ़ी बर सीढ़ी चढ़ना है, अलबत्ता तुमने ज़रूर बर ज़रूर सीढ़ी बर सीढ़ी चढ़ना है, और चढ़ते चढ़ते जाके तुम अपने अल्लाह से मिलोगे। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़
रूह का निकल जाना, फिर बदन का कब्र के अंदर दफन कर देना, फिर दफन के बाद दोबारा उठाया जाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को ऐसे नंगा उठाएंगे जिस तरह बच्चा पैदा होता है, और बगैर खतने के सारे इंसान दोबारा ऐसे उठेंगे जिस तरह के बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, और ये इंसान ज़मीन के पेट से उठेंगे। रफ़ा की आयत है, ए मोमिनो ज़रूर समझ लो कि ये वादा हक होने वाला है और ये होके रहेगा। अल्लाह इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने इरादा कर लिया अब उठाएंगे नहीं। करीब वो वक़्त आने वाला है कि जब तुम एक एक आदमी अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और बिला कपड़ों के, जिस्म नंगा है, और मैदान हशर में ये इंसान हाजिर है और अल्लाह सामने मौजूद है। फिर से सवाल होगा, और मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएंगे। तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया था कि अल्लाह आपने ये फरमाया था कि कल क़यामत के दिन मैं आपको रुसवा नहीं करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो आप फरमाएंगे कि या अल्लाह ये मेरे वालिद हैं, और अल्लाह आप मेरी आंखों के सामने आप इसको जहन्नम में डाल देंगे, तो अल्लाह मैं सब की नज़रों में रसवा हो जाऊँगा। कौन है? वक़्त के नबी है, वक़्त के नबी और बाप आज़र मुशरिक, बुत कदा नहीं, बुत बनाने वाला, बुतों की पूजा करने वाला नहीं, बुतों को बना के लोगों को देने वाला कि तुम भी बुतों की पूजा करो। कलमा तौहीद बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। ऐ अल्लाह हमें इसमें शुक्र की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक नसीब फरमा, और अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि हमें महरूम ना फरमा। अजीम दौलत, सबसे बड़ी दौलत कलमा तौहीद। इसी कलमा तौहीद की वजह से इंसान बचेगा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला में क्या करेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को अचानक वो एक जानवर की शक्ल में उनकी शक्ल बदलेगी और भी ज़मीन पे गिरेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि ज़मीन पे एक जानवर लेटा हुआ है, उसकी गर्दन पे छुरी चल रही है और खून में लथपथ है, और हुक्म होगा फरिश्तों इसको पकड़ो और जहन्नम में डालो। नबी का बाप न बच सका, नबी का बाप न बच सका, सिर्फ किस वजह से? कलमा तौहीद न होने की वजह से। नबी का बेटा न बच सका, सिर्फ कलमा तौहीद न होने की वजह से। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजीम दौलत, अजीम दौलत। अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं। इंसान के अंदर जो मेहनत है उस मेहनत को समझना, और मैं इल्म नाफे हासिल करना, इल्म नाफे हासिल करना, और इल्म नाफे हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इल्म नाफे यानी इल्म नफ़ा देने वाला। एक इंसान कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ के लेकिन इल्म नाफे उसके पास नहीं है। अब ये कलमा तो ज़रूर फ़ायदा देगा, लेकिन इल्म नाफे जब इसे मिलेगा तो ये बुलंदियाँ अता करेगा। इल्म नाफे जब उसे मिलेगा अल्लाह से बुलंदियाँ अता फरमाएगा। कलमा पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ा है लोगों की खिदमत नहीं की, कलमा पढ़ा हजूर सल्लम के पीछे नहीं चला, कलमा पढ़ा सहाबा की ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कलमा पढ़ा नेक लोगों की ज़िंदगी का कोई पता नहीं। कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन आज समझ नहीं, वजह क्या? इल्म नाफे नहीं मिला, इल्म नाफे नहीं मिला। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हमें नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, कि अल्लाह हमें नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। हदीस के मफ़हूम है फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 तरीक़ों से इंसान को इल्म नाफ़े देते हैं, और इल्म नाफ़े का नूर उसके दिल में बसता चला जाता है। फरमाया एक वो है कि दौड़ अल्लाह सुब्हानहू